Welcome back to my channel Learn Easy. Here we are doing the second exercise of the chapter data handling, which is the third chapter from class 7th NCERT textbook. So let us start. If you haven't seen the exercise 3.1, that is the very first exercise, that part 1 of that video, please check the description box for the link. Let us begin with the first question from the exercise. Also, if you haven't subscribed my channel yet, please hit the subscribe button, and if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. Let us begin exercise 3.2. Before we begin, I would like to inform you about these certain formulas which are very much essential for you all to solve the data handling related questions. So the very first formula which we have is mean. Mean is also called as arithmetic mean, right? Mean मतलब average, right? You can also say एवरेज. हमको एवरेज स्कोर निकालना है. क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? जैसे 10 मार्क्स का पेपर हुआ है, ज्यादातर बच्चों के 6, 7, 8, 9 में रहे हैं, तो हमारा एवरेज स्कोर क्या रहा है? फिर देन मीडियन इज द मिडल वैल्यू. जो भी आपके पास क्लास है, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन है, उसकी मिडल वैल्यू, राइट? देन वी हैव मोड. मोड जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज्यादा अकरिंग होती है, सबसे ज्यादा कॉमन नंबर. देखो यहाँ पे क्या है, 3 दो बार आया, बाकी और कोई नंबर नहीं है जो ऐसा रिपीट हुआ है. देन वी हैव रेंज, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू. मतलब हमेशा हम रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. ये तो हम पहले कर चुके हैं इन योर एक्सरसाइज 3.1. वी हैव डन रेंज एंड वी हैव also done median. Now we will do median and we will do mode. Let us start with the first question. Scores in mathematics test out of 25 or 15 students are given to you. Find the mode and median of the data. To check how to calculate, first I am going to calculate the number of observations. So here the value of n, let me see how many we have been given there. So these are 15 students. So 15 is an odd number. So for these types of question, the formula for median of an odd number is n plus 1 upon 2th term, that is 15 plus 1 by 2th term, that is 16 upon 2, which is the 8th term. अब ये 8th term हम कैसे निकालेंगे? First we will arrange the data in the ascending order, right? So let us arrange the data in the ascending order. Arranging in ascending order. हमने कैसे अरेंज करा डेटा को देखते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा को अरेंज करेंगे. सो वी विल गेट 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20. 4 times 20 is there. Then we have 23, 24, 25 and 25. So हमारे पास 8th term कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th. So this is the 8th term. So therefore हमारा मीडियन हो जाएगा 20. अब हमें मोड भी निकालना है. मोड इज ऑल्सो 20. क्यों? देखो 20 ही ऐसा नंबर है जो कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स, right? So 20, 20, 20 and 20. So the mode is 20. So yes, they both are same. Yes, they both are same, right? बढ़े आगे. Okay, let's move forward. यहाँ से आपको मीडियन कैलकुलेट करना आया जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड. और हमें मोड कैलकुलेट करना आया जो कि होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन. The runs scored in cricket match by 11 player is as follows. Find mean, mode and median of the data. Are the three same?
सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन। सबसे पहले हम जो आसान है, लेट अस फाइंड इट आउट। मोड हमारा निकालना आसान है, एक बारी हम मीन, मीडियन और हमारे पास आता है मोड, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है, राइट। सो लेट मी ए बी एंड सी। मोड हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमारे पास जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 10। और कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है बताओ? 15 भी रिपीट हो रहा है शायद, 1 2 3, यस। सो 15 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो 15 15 एंड 15, तो 3 बार आ गया, राइट। अब मीन का आता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करो सबको। ये 11 प्लेयर्स का है, तो अगर हमने सबको ऐड किया हम लोग को क्या मिला? 429। सो दैट इज 429 डिवाइडेड बाय 11 इज 39, तो हमारा मीन आ गया 39। बात करें हम मीडियन की, n कितना? अगेन इट इज n is 11 which is odd, that is n plus 1th upon 2th term, तो n मतलब 12.2 मतलब 6th टर्म हमारा मीडियन होना चाहिए, लेकिन हमारा मीडियन आंसर 6th टर्म नहीं हो सकता, तो हमारा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो अरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सो 6 8 10 10 15 15 15 3 आ गया। उसके बाद 50 80 100 120, 6 टर्म कौन सी? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास मीडियन कितना आ गया? 15, राइट। मीडियन 15 है, मोड भी 15 है, लेकिन मीन हमारा 15 नहीं है। सो माय फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? मेरा फाइनल आंसर मीन मीडियन आर 3 सेम? नो, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तीनों सेम नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question number 3. The weight in kg of 15 students of class are given to you. You have to find the mode, you have to find the median, and is there more than one mode. अब हमें चेक करना है कि एक से ज्यादा मोड्स हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे अपने डेटा को, बिकॉज हमें मीन नहीं निकालना, सो डायरेक्टली हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। व्हेन अरेंजिंग 32 35 36 37 38 38 38 अगेन, देन 40 42 43, 3 टाइम्स इज 43 हमें देना है, तो हमारा मोड भी ज़्यादा आने वाला है। देखो 45 47 एंड 50। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मोड की। तो मोड हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं, क्योंकि दो नंबर्स रिपीटेड हैं। कौन से दो नंबर्स? एक तो मुझे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इज 30 नॉट 37, इट इज 38 एक तो 3 बार रिपीट हो रहा है, और मेरे पास 43 3 बार रिपीट हो रहा है, 43 है ना। तो हमारा हो जाएगा 38 एंड 43 यहाँ पे मोड बन जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन उसको भी बोल देता है आंसर करने के लिए कि इज देयर अ मोड मोर देन वन? हाँ, यस, देयर आर टू मोड्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, मीडियन क्या है? मीडियन कितना है? लेट मी चेक। यहाँ पे n कितना है? वैल्यू ऑफ n कितनी आ रही है? 15। 15 मतलब ऑड है ना। तो ऑड नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे? सो दैट इज n plus 1th upon 2th टर्म,
So 15 plus 1 is 16. 16 अपॉन 2th टर्म मतलब हो गया 8th टर्म. तो 8th टर्म हमारी यहाँ पे क्या है 40. So 40 is the answer for the median. ठीक है, तो मीडियन 40 आ गया, लेकिन मोड 38 एंड 43 दो हैं, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. और सेकंड पार्ट हमें कहता है इज देयर मोर देन. यस, हर क्वेश्चन का पूरा आंसर दीजिए सो दैट इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे. फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा. अगेन वी हैव टू फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा. ठीक है, पहले अरेंज करेंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में. अच्छी लगे वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और एंड तक देखो, तभी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के यू विल बी एबल टू सॉल्व. फोर्थ, so that is 12, 12, 13, 13, then 3 times 14, then 16 and then 19. right, so पहले हम इसमें n की वैल्यू देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. so यहाँ पे 9 हो गया which is again odd. right, n हमारा odd है. कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली मोड तो बिल्कुल क्लियर है. राइट, 14 ही 3 टाइम्स आ रहा है तो हमारा मोड तो क्लियर है. अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की. मीडियन इज n प्लस 1 बाय 2th, 9 प्लस 1th बाय 2th, 10 बाय 2th. सो फिफ्थ टर्म होगी हमारी. अब फिफ्थ टर्म क्या है वो भी हम काउंट कर लेते हैं. आइए, 1 2 3 4 5. सो हमारे पास 14 ही आ रहा है फिफ्थ टर्म. So yes, mean and mode are same for this distribution. So therefore median and is equals to mode in this observation. पूछा नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख दिया. आप भी लिखना चाहो तो अपनी तरफ से लिख सकते हो. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Tell whether the statement is true or false. The mode is always one of the numbers in the data. Mode हमेशा डेटा में से आएगा. क्यों, क्योंकि one of the numbers in the data. Yes, so is it true or false? True. The mean is one of the numbers in the data. Mean जरूरी नहीं है, so this is false. Mean जरूरी नहीं है क्योंकि एवरेज है तो mean जरूरी नहीं है. Median is always one of the numbers in the data. Yes, so it is true. डेटा में से ही है. अब इस वाले डेटा का बोला है मीन 9 है. कैसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. मीन इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर. राइट, तो सम कितना हो गया हमारे पास 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गई ऑब्जर्वेशंस. राइट, सो इसमें हमारे पास 64 अपॉन 8. सो 8 8 is 64. So this is false. क्यों, 9 नहीं है. It should be 8. Right? So these were the 5 questions from this exercise. Coming to the end, in the next exercise we will study the graph. We will study the bar graph. Right? So let us come to the end of this video. I hope everybody enjoyed it. So thanks for watching this video and share this video with your friends. You can also find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel for more updates. Thank you.